Good evening, students. So, today we are going to start a new lesson, that is Children at Work. This is from your supplementary leader, lesson 2. Children at work means children, those who have to do labor, जो मजदूरी का काम करते हैं उनके बारे में. So, this story actually, it is a big problem and the child labor is banned in India. इस पे पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, but still it is going on. So negative effects of child labor. First I will tell you what are the negative effects. इसके हमारे देश पे, हमारे समाज पे नकारात्मक प्रभाव क्या है. The difficulty of task and harsh working conditions create a number of problems. So what are the problems to the children? That they are premature aging. So they become aged before their age actually. Malnutrition, they do not get good food, depression, the drug dependency, etc. From disadvantaged backgrounds, minority groups are abducted from their families. These children have no protection. You must have seen in the hotel somewhere, these on the dhabas, these students are working. So these actually they have no protection and they have no, their parents are not that well off that they can give them everything in life. So they have to work. So this story is also about a boy. First we will go through a word meanings. Pulled in. Pulled in means arrived, yani reached. Wobbly means unsteady, which is not stable. That is लड़खड़ाना, जिसको हिंदी में बोलते हैं लड़खड़ाना. Terrible, causing great fear, sorrow or discomfort. Terrible means which anything which makes us fearful, sorrowful, or it brings discomfort to us. Exhausted, tired, थका हुआ. Stuffing means to fill in something. Like stuffed parathas, in that we can fill aloo, we can fill anything. Stare means look fixedly, घूरना. Glumly यानी sadly, उदासी से, glumly. Mutter, speak in low voice, धीमी आवाज में बोलना कुछ. Grimace, twisted expression on the face, चेहरे पर एक टेढ़ा सा मुंह बना के expression देना, उसको बोलते हैं grimace. So these words you will come through. In the picture you can see these all children are child laborers. So they are collecting something from the dustbins, plastic bottles, polythenes and all these things, because they will go and sell them in the market and they will get money. Now this is a story about Vellu. This is the main character is Vellu. Okay, he is a 11-year-old boy. He runs away from his home. He wanders around for hours and get on the train to Chennai without a ticket. So he wanders, उधर तो भटकता रहता है. Then he gets on a train and comes to Chennai without ticket. He got off the train at Chennai Central and sat on the bench on the platform. Then when he reaches Chennai station platform, he gets off and sits on a bench. Tired and hungry, he doesn't know where to go. He's very tired, he's very hungry. He doesn't know where to go because he has run away from his home. He met Jaya. The other character is Jaya. Very important. The only two characters are there, main Vellu and Jaya. So he meets Jaya, the rag picker. Rag picker माने क्या होता है? कूड़ा बीनने वाली. आपने पिक्चर में देखा है कूड़ा बीनने वाली. Who called him roughly? जो उसको लोग roughly ऐसे ही बुलाते हैं. Vellu thought that she was the only hope and followed her. उसके लिए Vellu के लिए Jaya was the only hope because he knew only Jaya there. That too for some time only. They came acquainted to each other and he followed her. In the picture you can see the house in a slum. In the slum areas of cities, how people they build their house. You can see they don't have any brick or cement or something, wood, or it is all of plastic, tin, or leftover things which we throw from our house. They make their houses from this. So see the bad condition of the house. Then what happens? Now they walked through the busy streets and saw the central jail and reached an auditorium where a wedding was going on. Now Jaya leads him and they through the busy streets and शहर की बड़ी भीड़ भाड़ वाली गलियों से वो आते हैं और सेंट्रल जेल पहुंच जाते हैं. सेंट्रल जेल के सामने से निकलते हैं. वो दिखाती है उसको कि सेंट्रल जेल है और फिर वो एक ऑडिटोरियम, एक स्टेडियम टाइप का मैरिज हॉल है, वहाँ वो पहुँचते हैं जहाँ शादी हो रही है. बिकॉज वेल्लू वॉज वेरी हंग्री सो ही वांटेड टू ईट समथिंग. दैट्स वाई जया टुक हिम देयर. वेल्लू एंड जया गॉट अ वड़ा एंड अ स्क्वैशी बनाना टू ईट. अब देखिए वो क्या खाते हैं, एक वड़ा और एक स्क्वैशी बनाना. स्क्वैशी माने पिचका सा बनाना, एक केला. वो भी उनको कहाँ मिलता है? कूड़े में, जो लोग खा के फेंक देते हैं ना, जो एक्स्ट्रा, उसमें मिलता है. दे वॉकड फॉर हाफ एन आवर एंड रीच नियर अ रो ऑफ स्ट्रेंजर्स हट हियर सीन. अब वो आधा घंटा चलने के बाद एक
कतार, जहाँ पे झोपड़ियों की कतार होती है वहाँ पहुँचती है। उसने आज तक ऐसी झोपड़ियाँ नहीं देखी थी, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम अ विलेज। अभी मैंने आपको झोपड़ी पीछे दिखाई ना, कैसी झोपड़ी थी, तो उसने आज तक ऐसी झोपड़ियाँ नहीं देखी थी। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ देम एंड डम्प्ड हर सैक ऑफ पेपर, प्लास्टिक एंड बॉटल एंड पिक्ड अप द एम्प्टी वन। जया वहाँ पहुँची और उसने अपने हाथ में जो एक बड़ा सा बोरा ले रखा था जिसमें पेपर, प्लास्टिक, बॉटल भर रखी थी, उसको उसने वहाँ फेंका, डंप किया और एक खाली एक बोरा उठा लिया। शी थ्रू अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड। उसने उसके पास एक पुराने जूते फटे हुए फेंके, एक बोरा फेंका और डंडी फेंकी कि लो चलो हमारे साथ। इन कन्फ्यूजन ही आस्क्ड हर, उसने कन्फ्यूजन में उससे पूछा कि आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, क्या यहाँ पे कोई फार्म्स है? ही गॉट द आंसर दैट देयर आर नो फार्म्स हियर। उसे आंसर मिल गया कि यहाँ कोई फार्म्स नहीं है, यानी कोई खलिहान वगैरह नहीं है, खेती वगैरह नहीं होती यहाँ शहरों में। तो ही डिसाइडेड टू बी अ रैग पिकर थिंकिंग दैट ही विल डू इट टिल ही फाइंड्स अ बेटर जॉब। उसका मन गवाही तो नहीं दे रहा था रैग पिकर बनने के लिए, एक कूड़ा बीनने वाला बनने के लिए, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था उस समय। तो उसने कहा ओके, जब तक कोई और जॉब नहीं मिलता है, आई विल डू दिस। In the picture you can see that people are throwing food in the dustbin. This is the tragedy of our country, that so many people throw food like this and some people don't even have a single piece of grain. So this is very wrong. Now we will study the lesson in detail. When the Kanyakumari Express pulled in means reached, पहुंची, at central Chennai, it looked value some time to get off. उसको वेल्यू को ट्रेन से करने में कुछ टाइम लगा. When he finally stood on the platform, जब वो प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ा हुआ, his legs felt wobbly. उसके पैर लड़खड़ाने लगे. Because when we are sitting in a train for a long time and when we get down, we feel still the train is moving. So चक्कर से आते हैं थोड़े से. As if he was on a moving train, जैसे अभी भी वो ट्रेन में है. Oh, out of the way, a porter. पोर्टर माने सामान बेचने वाले, जो कुली जो रहते हैं. वेंट विद अ लोडेड ट्रॉली, जो कुली था वो लोडेड एक ट्रॉली लेके जा रहा था, भरी हुई ट्रॉली. उसने कहा एक तरफ हो. वेल्यू जम्प्ड असाइड. ही सेट ऑन द बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म. फिर वो एक बेंच पे बैठ गया. पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, उसका छोटा सा बंडल था उसके हाथ में, उसने उसको नीचे रख दिया. इन ऑल हिज 11 years ही हैड नेवर सीन सो मेनी पीपल एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज. उसने 11 साल में आज तक इतनी भीड़ भाड़ नहीं देखी थी जितनी स्टेशन पे, चेन्नई स्टेशन, वो भी इतना, विच इज़ ऑलवेज सो बिजी. इतने सारे लोगों को उसने देखा और उसने देखा कि ऐसी भीड़ उसके यहाँ गांव में सिर्फ मेला लगता था तभी दिखती थी. फेयर मीन्स मेला. पीपल वॉक्ड बाई बम्पिंग इन टू हिम विद देयर सूटकेसेस. लोग उसके बगल से निकल रहे थे. बम्पिंग माने टकराना, क्लैशिंग विथ हिम विद देयर सूटकेस, बड़े बड़े. अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन द लाउड स्पीकर. और तभी अनाउंसमेंट हुई. आपको पता है स्टेशन पे अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं स्पीकर पे. नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन. उसके पास ही एक बहुत सारे लोग बैठे थे. देयर लगेज, अपने लगेज के ऊपर ही बैठे थे लोग. लुकिंग ऑन एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द लूप. एक टीवी वहाँ पे लटका रहता है. यू हैव सीन ऑन द रेलवे स्टेशन टीवीज आर देयर. सो द नॉइज वॉज टेरेबल. और वो बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा था. वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज. उसने अपने सर को अपने दोनों घुटनों के बीच में दबा लिया. फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड. उसको बहुत मिजरेबल माने बहुत ही ज़्यादा टायर्ड, और एग्जॉस्टेड भी टायर्ड होता है. और मिजरेबल माने वेरी होपलेस. उसको बहुत ख़राब लग रहा था क्योंकि वो एक तो घर से भागा था, फिर इतनी लंबी जर्नी करके आया था, तो इसलिए ही वॉज वेरी मिजरेबल और एग्जॉस्टेड, टायर्ड, थका हुआ था. ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago. वो 2 दिन से अपने घर से भागा है. फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी. 2 दिन से उसको बेचारे को थोड़ी सी मूंगफली और गुड़ के अलावा कुछ भी खाया नहीं था उसने. इन हिज बंडल, उसके बंडल में क्या था? ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कोम. एक शर्ट थी, एक तौलिया था, एक कंघा था. ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द डे टू कन्नूर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई. वो वहाँ से अपने गांव से पैदल ही भागा, पैदल चल के कन्नूर तक आया. फिर कन्नौर से वो ट्रेन पकड़ के चेन्नई आ गया. वेलू हैड नो मनी फॉर द टिकट. उसके पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे. बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट. वो एक जनरल के डब्बे में बैठा था, अनारक्षित डब्बे में बैठा था, तो वहाँ टीटी नहीं आया. ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर. उसने सोने की कोशिश की दरवाजे पर. अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट. लेकिन कुछ लोग उसके बगल में बैठे ताश खेल रहे थे ग्रुप बना के, और वो रात भर चिल्लाते रहे, इसलिए वो सो नहीं पाया. दैट्स वाई ही वॉज फीलिंग वेरी मिजरेबल. ए वॉट न्यू टू टाउन?
called out a rough voice. तभी उसे किसी ने बुलाया. क्यों? शहर में नया आए हो? Vellu opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. बहुत सारे लोग खड़े थे तो, पर कोई उसको नहीं देख रहा था. तभी दोबारा आवाज आई. Here, hey! He turned around. उसने पीछे मुड़कर देखा. Behind him was a girl around his own age. उसी की एज की एक लड़की थी. Wearing a big banyan that came down to her knees. एक बड़ी सी बनियान पहनी हुई थी उसने जो लंबी जिसके घुटनों तक आ रही थी. Her hair was stiff and brownish. This is description, okay? You should remember the description. Her hair was stiff and brownish. उसके बाल कड़क और ब्राउन कलर के थे. And she had a huge sack on her one shoulder. और उसके कंधे पर एक बड़ा सा बोरा था. She was picking up dirty plastic cup from the floor and stuffing them. वो जमीन से डर्टी जो चाय पी के लोग कप फेंकते जा रहे थे उन कप्स को वो उठा रही थी और उसको स्टफ माने ठूस रही थी, भर रही थी. देम कहाँ पे? अपने जो बोरा उसके पास था. So this is the description of Jaya. Okay. Now you can see her hair was brownish. Why brown? Because unnourished. Because when we don't put oil in the our hair, then the hair become brown, unnourished, not cared. Nobody cares. That's why they were stiff also. So you see now what happened. You can see a boy sitting in the on the near the railway line, and he is almost alone. Now she was filling all the cups in her sack. Why is she calling me? Thought Vellu. Vellu ने सोचा मुझे क्यों बुला रही है? And why is the girl wearing a banyan? उसने कहा बनियान क्यों पहन रखी है इसने? No need to stare stupidly. What's your name? वो समझ गई कि ये व्यक्ति कहीं गाँव से आया है. That's why he doesn't know anything. तो उसने कहा इतनी स्टेयर मानी घूरना, इतने स्टूपिड की तरह मुझे मत घूरो. What's your name? Vellu. Muttered Vellu. Muttered slowly. उसने धीमे से कहा, looking away, दूसरी तरफ देखते हुए. So Mr. Vellu, said the girl, looking at his bundle, run away from home. अच्छा तुम घर से भाग के आए हो? Vellu didn't answer. He didn't want to tell some strange girl what he had done. किसी को अजनबी को बताना नहीं चाहता था उसने क्या किया. He had run away because he couldn't stand his father. वो क्यों भागा? He did not want to share this thing because it was something very personal for him. Because he couldn't stand his father's beating him for more one day. So see, the reason why he ran away from home, because his father used to beat him every day and he couldn't bear that beating. His father would snatch away all the money Vellu and his sisters earned and spend it on a drink. उसके फादर को शराब पीने की आदत थी. वो स्नैच अवे मीन्स टेक अवे, सारा छीन लेते थे उससे पैसा, उससे और उसकी बहनों से भी जो वो कमाते थे. अर्न मीन्स कमाना, एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और अपनी शराब पे उड़ा देते थे. डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू. जया ने कहा अरे मैं तुम्हें जानती हूँ, ये सब ऐसे ही बच्चे भरे हुए हैं यहाँ पे. सो वॉट आर यू गोइंग टू डू हियर? अब तुम यहाँ क्या करोगे? बिकम रिच, अमीर बनना चाहते हो? शी सैट डाउन नेक्स्ट टू मी, वो मेरे बगल में बैठ गई. वेल्लू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेल्लू थोड़ा सा खिसक गया बेंच से. बिकॉज ही वॉज फीलिंग शाई, ही वॉज फीलिंग ऑकवर्ड दैट ही हैज़ रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ हिज फादर. तो आपने देखा, ओ वॉट आर यू डूइंग गोइंग टू डू हियर? बिकम रिच. उसके बगल में बैठ गई. वेल्लू शिफ्टेड अवे स्लाइटली. ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विथ अ ग्रीमेस. उसको अपने पेट में ऐसे लग रहा था कांटे चुप रहे हैं, पिंच कर रहा है, कोई चूटियाँ काट रहा है पेट में. उसने अपनी पेट को दबाया और ग्रीमेस और चेहरे को दुखी सा टेढ़ा सा मुँह किया. हंग्री? आस्क्ड द गर्ल. यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हियर. उसने कहा. अच्छा, वो समझ गई. जब उसने पेट को ऐसे हाथ रखा, पेट दबाया, तो वो समझ गई कि इसको भूख लग रही है. तो उसने कहा तुम्हें यहाँ बैठे बैठे खाना नहीं मिलेगा. ग्लम्बली माने सैडली, मेकिंग फेसेस, चेहरे बनाने से कुछ खाना नहीं मिलेगा. आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट. अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें कुछ खाना दे सकती हूँ. शी पिक्ड अप अ स्टैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे. उसने अपना बोरा उठाया और चल दी, वॉकिंग करने लगी. वेल्लू स्टेड ऑन द बेंच. वेल्लू वहीं बैठा रहा. वॉट शुड यू डू? ही वॉज कन्फ्यूज. वो क्या करे? शुड ही फॉलो द गर्ल? क्या वो उसके पीछे जाए? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम? वो कहाँ जा रही है? शी वॉज डिसअपियरिंग इन द क्राउड. वो कुछ ही देर में क्राउड में गायब हो जाएगी. डिसअपियर मीन्स गायब होना. सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली. उसे जल्दी डिसाइड करना था कि वो क्या करेगा. इस लड़की के पीछे जाएगा या यहीं बैठा रहेगा. ऑल राइट, ही डिसाइडेड. उसने डिसाइड कर लिया. एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो. उसे कुछ नहीं पता था ये लड़की कहाँ जा रही है, क्या है. ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर. वो कूद के उसके पीछे पीछे भागा. शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज. वो रुकी भी नहीं उसको देखने के लिए कि वो आ रहा है पीछे कि नहीं आ रहा है. वो चलती गई. बिकॉज
एवरी डे शी मस्ट बी मीटिंग. ये देखिए आप, वेल्लू इज सिटिंग ऑन द बेंच, इज हैविंग उसकी एक छोटी सी यहाँ पे पोटली उसमें है. और ये देखो वेल्लू, ये जो है जया है, ये बनियान पहनी हुई है लंबी सी, नहीं कॉमिकल लग रहा है इसका फेस. और इसके हेयर आप देख सकते हैं पूरे स्प्रेड आउट हैं, स्टफ हैं और ब्राउन कलर के हैं. स्टेशन पे कितनी भीड़ है, ट्रेन अभी आई है. और इसका फेस आप देख सकते हैं कितना दुखी है वो. और ये कूड़े में से देखिए कप्स वगैरह बीन रही है. ओके, ये दूसरी पिक्चर है ट्रैफिक की. ट्रैफिक जो होता है, कितना शहरों में कितना ट्रैफिक है, एक के बाद एक कार है, गाड़ी है, पुलिस भी लगी है ट्रैफिक मैनेज करने के लिए, बट स्टिल सो मच ऑफ ट्रैफिक इज़ देयर. तो ये ट्रैफिक को आप याद रखेंगे, जब वैल्यू अब जाएगा उसके पीछे पीछे तो उसको ऐसा ही ट्रैफिक मिलेगा सड़कों पे. ही हैज़ नेवर सीन सच टाइप ऑफ ट्रैफिक इन हिज विलेज एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू गो थ्रू दिस. ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लीविंग द स्टेशन. जैसे ही वो लड़की स्टेशन छोड़ के जा रही थी उसको उसने पकड़ लिया, मिल गई उसको. When they got to the road, Vellu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. अभी मैंने आपको ट्रैफिक की पिक्चर दिखाई ना, that vehicles they kept on coming and never stopped for anyone. Smoke and dust flew at him from all sides. चारों तरफ से स्मोक और धुआं और धूल सब तरफ से उड़ रही थी. Making his pet's head spin. उसका हेड स्पिन करने लगा, गोल गोल घूमने लगा, whirling करने लगा. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. उन्हें बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा कि गाड़ियों के बीच में से गैप मिले. वेल्लू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड. वेल्लू हेजिटेट करता रहा क्योंकि उसको डर लग रहा था टू गो इनसाइड द ट्रैफिक, उसे डर लग रहा था. बट द गर्ल उसको ड्रैग करके खींच के ऑलमोस्ट दूसरी तरफ ले गई. व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग? ग्रेजिंग काउज. क्या तुम यहाँ पे गाय चरा रहे हो? ग्रेजिंग काउज. इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी. उसने कहा अगर तुम ऐसे रोड के बीच बीच खड़े रहोगे तुम्हारी चटनी बन जाएगी. वेल्लू हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट. उसको अभी भी हार्ट जोर जोर से धक धक कर रहा था. ही वॉज अफ्रेड ऑफ द ट्रैफिक. ही लुक बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाई. उसने पलट के देखा स्टेशन की तरफ और ट्रैफिक जितना आ रहा था. हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट. वो सोच रहा था वो कैसे निकल के आ गया इसमें से. दे वॉक थ्रू द अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम. वो अब रोड के किनारे किनारे चल लगे. अंडर सम, थोड़ी देर बाद ही ये आप हट देख सकते हैं जहाँ वो पहुँचेगा उसके घर जाएगा. जो घर का सीन है वो आप इसको देख के आप समझ जाएंगे, ठीक है ना. कैसे रैग से बना है डंडे और कहीं भी प्लास्टिक और इन सब से घर बना हुआ है. ये देखिए ट्रैफिक में से उसको ड्रैग करके ले जा रही है जया और वो कितना अफ्रेड है. लोग चिल्ला रहे हैं और वो बीचों बीच है, ये रेलवे स्टेशन है पीछे और ये ट्रैफिक आता जा रहा है. तो वो जया उससे कहती है कि तुम्हारी चटनी बन जाएगी अगर तुम बीच में खड़े रहोगे. You can see the picture and you can understand the situation. Now, huge sign boards. बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे हुए थे. साइन बोर्ड माने एडवर्टीजमेंट के लिए जो बड़े बड़े इश्तेहार के लिए बोर्ड लगे रहते हैं, वो उनके नीचे से वो निकल रहा था. वेल्यू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स. उसने उन पिक्चर्स को देखा, उस पर क्या क्या लिखा है, वेरियंस, कार, टायर, सब कुछ वो देख रहा था जो जो उस पिक्चर में बने थे. पेन्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, सब उसमें पिक्चर में. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिडंट नो व्हाट इट मेंट. अब जो बॉक्स के ऊपर जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे उनके ऊपर सब कुछ इंग्लिश में लिखा था, तो उसको इंग्लिश नहीं आती थी तो वो समझ नहीं पाया. द गर्ल टर्न इनटू अ वाइड ब्रिज एंड वॉक्ड बाय. तभी लड़की एक बड़े से ब्रिज की तरफ को गई उसमें और भी बगल में चलने लगी. वेल्लू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग अंडर हिम. वेल्लू भी रुक गया और उसके नीचे रेलिंग के नीचे देखने लगा कि क्या है. अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी. और वो जो पुल के नीचे से, जो ब्रिज के नीचे से एक रोड जा रही थी जो शहर के अंदर जा रही थी. तो वो लड़की उसको ब्रिज के ऊपर ले आई और वो लोग ब्रिज के ऊपर चलने लगे. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड द टावर्स एंड मोर रोड्स. उसको बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े टावर्स, जिसको बोलते हैं मीनार, बड़ी बड़ी मीनारें और रोड्स, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोड्स. सी दैट बिल्डिंग विद द टॉप वॉल अराउंड. उसने कहा वो बिल्डिंग देख रहे हो जिसके चारों तरफ वॉल है. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल बी सून काउंटिंग बार्स देयर. उसने कहा उसने ये नहीं कहा कि जेल है. उसने कैसे बोला कि अगर तुमने ध्यान नहीं रखा ना तो तुम भी वहाँ पीछे बार्स माने सलाखों के पीछे हो गए. सलाखें गिन रहे, काउंटिंग बार्स माने सलाखों के पीछे हो गए, यानी जेल में हो गए. और द गर्ल ग्रिंड. उसने हंसी और इसके संग वो हंस दी. ग्रिन माने एक दांत निकालना. एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग. और उसने उंगली तरफ इशारा किया, यानी उसने उसको दूर से जेल दिखाई.
वेल्यू स्क्विंटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेल्यू ने स्क्विंट किया, उसने ऐसे अपनी आँखों को सिकोड़ के आँखों को जैसे पार्टली शट, अपनी आँखों को थोड़ा सा शट किया इन ऑर्डर टू सी बेटर, और साइन देख के वो समझ गया कि सेंट्रल जेल। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, उसने कहा मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है, मैं क्यों जाऊँगा जेल में। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, उसने कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस पकड़े मत जाना, दैट्स ऑल। यानी कि these children are they are not under any protection, they can be taken to jail, okay, for some other reason. अब ये देख रहे हैं आप हाउसेज इन द विलेज, अभी आगे डिस्क्रिप्शन आएगा कि विलेज में हाउस कैसे होते हैं और शहरों में कैसे होते हैं। तो ये विलेज का हट है जिसमें लोग कैसे घर बनाते हैं, है ना, आप देख रहे हैं। सो ब्यूटीफुल, नीट, क्लीन, दो दे आर नॉट मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट, बट स्टिल द हाउसेज आर सो ब्यूटीफुल। देन व्हाट डज शी मीन, अब उसने ये तो कह दिया कि तुम्हें जेल पुलिस ले जाएगी, उसका क्या मतलब था। वेल्यू सोचने लगा। मीनवाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, अब वो ब्रिज से नीचे को उतरने लगी, बोरा अपनी पीठ पे टांगे टांगे। व्हाट वॉज इन इट, ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, उसने सोचा इस बोरे के अंदर क्या है, उसने उसको देखा था कि प्लास्टिक कप्स वो उसमें डाल रही थी। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, बैग के अंदर क्या है, तो उसने बताया थिंग्स, बॉटल्स, पेपर, ये सब। वेल्यू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद देम, उसने कहा इनके सब क्या करोगी, उसको आज ये लग रहा है कि पूछने की हिम्मत नहीं हुई। बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, उसको थोड़ी शर्म सी आ रही थी क्वेश्चन पूछने में। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेल्यू बेयर फीट रन, अभी सुबह सुबह का ही समय था, ज़्यादा धूप तेज़ नहीं थी, पर सूरज की ब्लास्टेड डाउन, ब्लास्टेड माने इतनी तेज़ धूप थी सूरज की कि वो वैसा लग रहा था सूरज फट जाएगा, और जो टार था यानी कि तारकोल वो उसके पैरों में ऐसे चिपक रहा था, उसको लग रहा था कि वो मेल्ट करके उसके पैरों में चिपक जाएगा, है ना। तो अब देखिए बेचारा नंगे पैर भी था, उसके नंगे पैर जलने लगे। इट वॉज नॉट लाइक वर्किंग ऑन अ मड रोड, गाँव में मड की मिट्टी की सड़कें होती हैं, उस पर पाँव ऐसे जलते नहीं हैं, चिपकते नहीं हैं तार। He was soaked with sweat, वो पसीने से भर गया, sweat means पसीना। He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time, अब वो जल्दी जल्दी चलने की कोशिश भी कर रहा था और छाँव में चलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसको बहुत गर्म लग रहा था। एंड अप विद द गर्ल, और वो लड़की इतना स्पीड में चल रही थी, उसके संग संग भी चलना था और छाँव में भी चलना था, पैरों को बचाना था। शी वॉकड रियली फास्ट। हाउ फार वॉज द फूड, कितनी दूर है खाना, कहाँ तक लेके जाएगी, ही वॉज थिंकिंग। शी ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, आफ्टर करीब 1 घंटा चले वो। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, फिर वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे रुक गए। क्या लिखा था उस बिल्डिंग पे, श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम रेड वेल्यू, उस पर ये लिखा था। कल्याण माने शादी, कल्याणा मीन शादी, तो एक ये शादी का घर था, विवाह घर टाइप का था। अब ये देखिए विवाह घर के बाहर ये दोनों बच्चे खड़े हुए हैं, यू कैन सी द पिक्चर, है ना, एंड शी इज पिकिंग अप अ बनाना एंड गिविंग, एंड देयर आर सी द फूड विच हैज बीन थ्रोन बाय द पीपल, डॉग्स आर देयर, दे आर some stray dogs are there, they are fighting, and see so mosquitoes and flies are there, are so unhygienic. But these children, they don't have any food at home, so they are forced to eat food from here. So you can see from the picture. Slowly a sign with letters made of flower said groom, फिर वहाँ पे बाहर एक बड़ा सा फ्लावर से बना हुआ बोर्ड भी लगा था जिस पे लिखा था J.V. विनयगम ब्राइड, ये वो है ब्राइड है, और रानी, ठीक है, यानी ये ग्रूम है, ग्रूम माने दूल्हा, और ब्राइड कौन है, रानी। तो ये दो विनयागन और रानी, इनकी शादी हो रही थी वहाँ पर। रेलू स्टेड एट द बिग कार्स पार्क आउटसाइड, उसने कभी इतनी सारी कार्स भी नहीं देखी थी पार्क की हुई। वन ऑफ द कार हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोज टेप्ड ऑन टू इट, उसके ऊपर, ऑन टू माने उसके ऊपर, ये प्रपोजिशन है, ऑन टू माने ऊपर, उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स के मालाएं और रोजेस उस पर टेप से लगाए गए थे, एक माला एक कार पे। द गर्ल रुक डाउन, पुल वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इनटू अ हेयर, उसने उसमें से एक फूल को खींचा और अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सेड, आर वी गोइंग टू ईट हियर, उसे लगा कि शादी के अंदर जाके खाना खाएंगे, क्या हम अंदर जाके खाएंगे, आस्क्ड वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, बड़े बड़े लोगों को देखा, उसने कहा क्या हम लोग इस हॉल के अंदर जाके खाना खाएंगे। होप्स said the girl shaking a thumb under his nose, उसने कहा देखो क्या आशा लगाए है। She led him behind the hall, वो उसको हॉल के पीछे के हिस्से में ले गई।
देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विथ रबिश. अभी मैंने पिक्चर में आपको दिखाया ना, एक बड़ा सा डस्टबिन था जिसमें ओवरफ्लो कर रहा था, जिसमें इतना कूड़ा हो गया था कि वो ओवरफ्लो कर रहा था, बाहर गिर रहा हुआ था. 2 goats वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल. वहाँ 2 बकरियाँ भी आपने देखी जो उस ढेर में, पाइल में, ढेर में, फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, वो केले की पत्ती के लिए झगड़ रही थी. अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड द लेग. और एक मक्खियों का झुंड, पूरा क्लाउड कलेक्टिव नाउन है, क्लाउड ऑफ फ्लाइज. उसके बजिंग देखो, ऑनोमेटोपोइक वर्ड है जो साउंड को बता रहा है. तो एक मक्खियों का समूह उनके चारों वहाँ पैरों के आसपास था, यानी वो खाने में बैठा होगा. जब वो खाने में गए तो वो सब उनके ऊपर बनाने लगी. देयर वॉज अ रॉटन स्मेल इन द एयर. सड़ी हुई बास आ रही थी वहाँ से. द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेल्लू. उसने वहाँ से उसको एक पिचका सा बनाना उठा के दिया और वेल्लू को कहा, ये लो, हियर्स योर फूड, खा लो. वेल्लू वॉज शॉक्ड. आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स. उसने कहा, क्या हम उनका झूठा खाएंगे, बचा हुआ खाएंगे. चे, व्हाट डू यू थिंक आई एम, अ डॉग? आई ओनली टेक अनटच फूड. उसने कहा, अरे तुम क्या सोचते हैं, कुत्ते हैं क्या, हम अनटच फूड खाते हैं, किसी का झूठा नहीं खाएंगे, लेकिन जो खाना पूरा का पूरा लोगों ने फेंक दिया वो ही उठा के खाएंगे. हेयर सम मोर कैच. शी थ्रू हिम अ वड़ा. उसने उसको वड़ा भी दिया. वेल्लू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेस्ट. वेल्लू ने कभी ऐसा खाना नहीं खाया था गाँव में, सो दैट्स वाई उसने बहुत डिस्टेस्ट से बड़े बुरा मुंह बना के और बिना उसको देखे उस खाने को देखा. अब देखिए, ये वेल्लू का घर है, इसका जया का घर है. जया का घर देखिए, टायर, टिन है ना, बोरी, इन सब चीज़ों से बना है. कुत्ता भी है. और वो जया उसको एक शूज़ दे रही है, एक सैक दे रही है, एक डंडा दे रही है. सो यू कैन सी द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द हाउस. कम ऑन हीरो, ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट. उसने कहा, चुपचाप खा लो, हीरो मत बनो, हीरो की तरह मत बनो. आई टोल्ड आई विल फाइंड यू समथिंग गुड, समथिंग टू ईट. डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू. मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ढूंढ दूंगी, ये नहीं कहा था कि तुम्हें खरीद दूंगी. मेरे पास पैसे थोड़ी हैं. यू बेटर ईट व्हेन यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी. तो अच्छा तभी खाना जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं. वेलू हेजिटेटेड बट स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन. वेलू ने थोड़ा हेजिटेट किया पर उसका पेट फिर से स्क्वीज माने पिचकने लगा. ही गल्प डाउन द बनाना एंड द वड़ा. उससे जल्दी जल्दी बनाना और वड़ा खाया. ही स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली. उसको थोड़ा सा अच्छा लगा. ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times more. वो इतना ही 10 गुना और खा सकता था. बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more banana which she ate herself. उसको चली को एक और केला मिला जो उसने खुद खाया, वो खुद भी तो भूखी थी. तो दीज आर ऑल चिल्ड्रन एट वर्क. चिल्ड्रन देख सकते हैं, प्यारे प्यारे बच्चे बने हैं. ओके, now second part is left and I think it will be very big, so tomorrow we will continue with the second part. Okay, till now we will study up till here. Thank you, have a nice day.